Good evening. So, in this video, we will learn chapter number 15, that is our environment. Okay. So, we will learn the first page of chapter number 15. So, now I am starting by reading. So, first paragraph is an introduction part. So, let's see what is in that. So, we have heard the word environment often being used on the television, in newspaper, and by people around us. What it means कि हम कई बार environment ऐसा word सुनते हैं टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में या तो फिर कई people से. So basically environment, according to me, what is environment? Anything surround us that is called as environment. So we can say environment is anything surround us, whether it is non-living thing or living thing, both. Okay, next, our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. ये कई बार हमने सुना होगा कि elders ऐसा बोलते हैं कि पहले जैसा environment अब नहीं रहा है. That means what? In that case, पहले जो environment था, that is without pollution. That means it was pollution free, and nowadays environment become polluted. More specific, it will become a polluted. That means nowadays हुआ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है एंड व्हीकल यूज बढ़ गया है. सो फ्रॉम दैट more of the toxic gases produced by that vehicle and industry, so that environment get polluted. So we can say that कि पहले ऐसा नहीं था, पहले व्हीकल का कम यूज था, ठीक है, इंडस्ट्री इतने सारे ज्यादा नहीं थे, सो पहले इन्वायरमेंट क्लीन था. ओके, सो मोर स्पेसिफिक वी कैन से दैट अर्लियर इन्वायरमेंट इज मोर क्लियर, मोर क्लीन देन नाउ. ठीक है, देन अदर्स say that we should work in healthy environment. What is healthy environment? That is clean environment, pollution free environment, that is called as healthy environment. Next, and global summits means global meeting, जो वर्ल्ड लेवल पे जो मीटिंग होती है उसको ग्लोबल समिट्स कहते हैं. Involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. There are so many environmental issues. Now just I want to give you one information about developed and developing countries. ये आपने पढ़ा होगा. डेवलप्ड मतलब जिसका डेवलपमेंट हो गया है, लाइक यूएसए, चाइना. एंड डेवलपिंग मतलब जो डेवलप कर रहा है. ओके, इंडिया इज इंक्लूडेड इन डेवलपिंग कंट्री. ओके, so in this chapter we shall be studying how various factors on the environment interact with each other. मतलब एनवायरनमेंट के एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं. जैसे कि हम बात करें वी एज अ ह्यूमन बीइंग, सो हाउ वी इंटरेक्ट विथ अदर environmental factor like trees, like with river water, like with sun. So that are the those are the factors of environment. So we have to study how we interact with each other, and how a particular factor with which will interact with another factor. Okay, and how we impact the environment. Okay, so basically how we affect the environment. It could be positive effect, or it could be negative effect. Means it could be beneficial effect, okay, or it could be non-beneficial effect. In class 9th we saw how different materials are cycled in the environment in separate biochemical cycles. Okay, see, ये आया है class 9 में. different kinds of cycle you have learned in class 9, that is water cycle. वो तो class 6 में ही आ जाता है. Water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle. So this kind of cycle, in that particular cycle, one factor is interacting with another factor. Okay, जैसे कि बात करें हम वाटर साइकिल में, तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो सी वाटर है विच विल गेट इवोपरेट. हाउ इट विल गेट इवोपरेट? थ्रू सन हीटिंग. ठीक है, सो बेसिकली द सी वाटर is interacting with sun. So because of sun effect, sea water will get evaporated, okay, which will be a crucial part of water cycle. So we can say that any particular cycle, a particular factor which will get interact with another factor, okay, through biogeochemical process. Biogeochemical means
In that biological process are involved, chemical process are involved, okay, and geological means जो भी प्रोसेस जो अर्थ के क्रस्ट में होती है दैट इज कॉल्ड एज जियोकेमिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल में ऐसा होता है कि अर्थ के क्रस्ट में प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल में, मतलब जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है विच विल गेट एब्सॉर्ब्ड इन अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट, in this cycle essential nutrients like nitrogen, oxygen, carbon and water are changed from one form to another form, that is right। आपको पता होगा कि जैसे कि हम वाटर की बात करें तो सी वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, देन वेपर विल गेट कंडेंस्ड, ओके, एंड इट विल गेट okay, it will it will comes towards the earth by the form of rain, okay, after that rainwater will get absorbed in the water, land, and so that boring water will get generated, मतलब जो रेन वाटर होता है वो पानी के सॉरी लैंड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा, वो एब्सॉर्प्शन की वजह से बोरिंग वाटर का जनरेशन होगा, ठीक है, वो तो वाटर साइकिल की बात थी। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर विल गेट रिलीज्ड इन द रिवर एंड थ्रू रिवर वो वापस से सी में चला जाएगा। सो नेक्स्ट वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द साइकिल, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे उसका अफेक्ट करती है। सो नाउ टॉपिक नंबर 15.1, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड our waste to the environment, whatever waste material it could be, whether it could be polythene, let's say plastic material, paper material। आपको तो पता होगा कि अब 3 टाइप्स ऑफ डस्टबिन आते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है, एक पेपर वेस्ट का होता है और एक ऑर्गेनिक वो प्लास्टिक वेस्ट का होता है। आई थिंक ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर, आपको पता होगा अपने बस डेपो में है ऐसे 3 डस्टबिन होते हैं। सो कैसे है उसका रीजन क्या है वो तो ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक बात थी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वेस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड हाउ वी ऐड, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे, दैट्स राइट। लेट्स से इफ वी आर परचेजिंग एनी वेजिटेबल्स, okay, and if we will cook sorry I don't know what about today, बहुत स्लिपिंग ऑफ टंग हो रहा है आज। चलो कोई नहीं, अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, वैसे तो कुछ गलती हो रही है तो मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है बोलने में स्लिपिंग ऑफ टंग होता है, तो उसकी वजह से टंग स्लिप होने की वजह से कुछ वर्ड अच्छे से बोल नहीं पाते हम, आज ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। Now I am trying my best. Basically, what will happen if we will purchase any vegetable, okay? And if we want to cook it, हमको उसको कुक करना है। So कुक करने के लिए हम वो वेजिटेबल को whatever प्रोसीजर हम उस पर कुछ भी प्रोसीजर अप्लाई कर दे, जैसे कि हम कोई वेजिटेबल है उसको छीलेंगे, सो छीलने की वजह से उसका जो रैपिंग मटेरियल होगा आउटर पार्ट, उसको एज अ वेस्ट हम we will throw it away, okay, from our home। so वो वेस्ट होगा, वो भी लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। एनी अदर सो मेनी वेस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग, जैसे कि बालाजी वेफर है, उसका पैकेट खाकर हम कहीं पर भी, अभी तो वैसे बहुत अच्छा व्हाट वी कैन से, अगेन आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्ड, पर्सन में अच्छा ऐसा मतलब जानने मिला है उनको कि बेसिकली के स्वच्छता भारत अभियान की अभी इसका बहुत इफेक्ट देखने मिला है। जैसे कि पहले हम जैसे कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वी आर ईटिंग एनी पैकिंग मटेरियल एंड वी यूज्ड टू थ्रो इट अवे फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस और ट्रेन, बट अब ऐसा नहीं करते लोग। पर्टिकुलरली आई इम्प्रूव्ड इट, मैंने वो इम्प्रूव किया है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन वो बात तो सही है कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे लैंड को पॉल्यूट करता है, वो लैंड को पॉल्यूट करने की वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान से ये सक्सेस नहीं मिलेगा स्वच्छता भारत अभियान में, वी ऑल हैव टू ओके प्रमोट टुगेदर एंड वी हैव टू
follow the rules and regulations which is involved in Swachhata Bharat Abhiyan. So it will be beneficial for our India specifically, and our whole earth. Okay, so we are the people we have who have to create the, I'm not getting a proper word, what we can say, उसको हिंदी में जागरूकता कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, लेकिन आप समझ लिए व्हाट आई मीन टू से. ओके, चलो आगे. व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम अवे, क्या होगा बाद में? डिकम्पोजिशन होता है. कुछ तो ऐसे होते हैं जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, लेट्स से प्लास्टिक, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट का तो फिर भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा. यू नो व्हाट, प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन होने में आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक 8 लाख ईयर्स लगते. जस्ट थिंक अबाउट इट कि सपोज आपने बालाजी वेफर्स का पैकेट खाकर बाहर उसको फेंक दिया, और उसके बाद में अगर वो जमीन में चला जाएगा ना, तो बाद में उसका डिकम्पोजिशन होने में 8 लाख ईयर्स लगता है. सो जस्ट थिंक कि जैसे कि आप वाटर के अंदर कुछ भी प्लास्टिक मटेरियल डाल दे रहे हैं, तो उसमें जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, स्पेसिफिकली जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर लाइक फिश है, सो उनको so they are finding the difficulties for living in the water. okay, जो वो प्लास्टिक होता है उसकी वजह से उनको वहां पे रहने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है. So let us perform an activity to find the answer to these questions. देखिए 15.1, collect the waste material from your houses. This could include all the waste generated during the day, like the kitchen waste, spoiled food. ठीक है, वेजिटेबल पिल्स, हाँ पिल्स मतलब उसका आउटर पार्ट, एंड यूज्ड टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, चाय बना दी उसके बाद में जो रहता है वो, मिल्क पैकेट्स एंड एम्प्टी कार्टून्स, वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन. ठीक है, देन मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप्स, बबल पैक्स, old and torn clothes and broken footwear. Basically all kinds of material, all kinds of waste, specifically waste we have to collect. Okay, next, bury this material in a pit in our school garden. Bury means we have to dip it. Okay, we have to insert it in a pit, मतलब एक खड्डे में, एक गड्ढे में उसको we have to insert it. Then if there is no space available, then you can collect the material in the old bucket, flower pot. ऐसा तो होगा ही नहीं कि हमारे पास में, अच्छा सॉरी, पिट बनाने का अगर मटेरियल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट अ मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, मतलब एक बकेट ले सकते हो, फ्लावर पॉट ले सकते हो, उसमें 50 सेंटीमीटर सॉइल का एक लेयर बना दो और उसके अंदर ये सारा मटेरियल डाल दो. Keep the material moist and observe at 15 day intervals. मतलब मॉइस्चर में उसको रखना है, मतलब we can say rainy season में. Moisture is what? Moisture is tiny water particles, small water particles which are present in atmosphere, which is called as moisture. Okay. Observe at 15 days में उसको observe करना है. So what are the materials that remain unchanged over the period of time? वो मटेरियल अनचेंज रहेंगे जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा. लेट्स से प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, वो अनचेंज रहेंगे. व्हाट मटेरियल विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर द टाइम, कौन से मटेरियल चेंज होंगे? विच विल गेट डिकम्पोज्ड, जिसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा. एक बहुत सिंपल सी चीज है कि सपोज कोई किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, तो वो बंदे को हम क्या करते हैं, जैसे कि इस्लामिक रीजन में ऐसा है कि उसको ही और शी विल गेट बरीड इन अ पिट. सेम वे इस्लामिक रीजन में ऐसा किया जाता है, एंड उसके ऊपर सॉइल का लेयर बनाया जाता है. सो आफ्टर 13 डेज और 40 डेज के बाद में उसमें से अगर हम देखेंगे कि उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा. वो जो डेड बॉडी है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा. कुछ समय के बाद में तो सिर्फ उसका कंकाल ही दिखेगा.
और कंकाल के अंदर होता क्या है, स्केलेटन के अंदर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सो उसका भी डिकम्पोजिशन होता है आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, प्लास्टिक ऐसा है जिसका डिकम्पोजिशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज हर एक चीज का डिकम्पोजिशन होता है, बट सम ऑफ हैविंग अ लार्जर some of having will take longer time to be decomposition and some will take less time, okay, to be decomposed. And the last line of this material that are changed, which one changed the fastest? जिसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा वो जल्दी चेंज करेगा। ऐसा एक्टिविटी वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी था कि कैसे विच आर द काइंड्स ऑफ वेस्ट वी आर हैविंग। ओके, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट के जिसका डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, स्लोली होगा, बहुत स्लोली होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज। ओके, बेसिकली ये पेज में हमने यही सीखा कि वेस्ट मतलब वेस्ट कैसे अफेक्ट करता है, वो तो अभी ऐसा नहीं आया, लेकिन कौन से वेस्ट होते हैं और एक्टिविटी, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इस पेज में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो। लेकिन समटाइम्स इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑफ होल चैप्टर। समझ में आ रहा है? whenever you are entering any big hotel, okay, so you have to review read the review of the hotel. So what is review is basically a introduction of the hotel. Okay, रिव्यू विल नॉट गेट हेल्पफुल, उसके लिए आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, रिव्यू से आपको खाना नहीं मिलेगा बेसिकली, लेकिन रिव्यू हेल्पफुल करेगा होटल के बारे में जानने के लिए। सेम वे अगर ये पेज में से एग्जाम में कुछ नहीं आता है, दैट डजंट मीन के ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेज आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो लिसन केयरफुली एंड विद दिस नोट आई एम थैंकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।